हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स. So it is very important to know the skill management. So before we start our topic, I would like to say something. आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्किल मैनेजमेंट. तो before study about the management, we will discuss about the spiel. What is spiel, its purpose, scope and various types of spiel. The first point is a purpose and scope of spiel management. Why it is necessary to manage the spiel in hospital areas. So what is the purpose and scope of the spiel management? So there are two main purpose and scope of the spiel management. That is, first is to ensure the safe management. मीन्स फॉर कि अगर आप स्पिल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका पर्पस फर्स्ट क्या होगा, टू एंश्योर द सेफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्पिल इन हॉस्पिटल. तो आप जो भी मैनेज करेंगे वो सेफली होना चाहिए, इसलिए आपको पर्टिकुलर मैनेजमेंट से ही स्पिल को मैनेज करना है. सेकंड इज टू अप्लाई प्रिकॉशन. To apply various precaution to prevent from the contact or injuries or any hazardous effects from the spill. So these are the two main points of spill management: purpose and scope, that is to ensure the safe management of various types of spillage, and then to apply a precautions which will be applied, that is should be standard precautions. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अगर स्पिल हो गया है तो कुछ भी आप डालेंगे, किसी से भी पूछेंगे. दिस शुड नॉट बी डन. सो वी एंश्योर द सेफ मैनेजमेंट एंड देन टू अप्लाई अ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. दीज आर द पर्पज एंड स्कोप ऑफ स्पिल मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट आता है डेफिनेशन. देन डेफिनेशन ऑफ स्पिल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिल? टू अलाउ और कॉज अ सब्सटेंस टू fall, spread out of the container, that is called as a spills. So this is the definition of. There is one more definition of the spill management, and I have prepared on this topic the thorough notes. You should follow that notes and you will write in exam. Then types of spills. What are the types of spills? There are 4 types of spills. First is a biological spill, that is blood or any body fluids. These are a biological spill, means whatever it is, it should be from human body. जो भी ह्यूमन बॉडी से फ्लूइड निकलता है उसका अगर स्पिल हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल स्पिल. फॉर एग्जांपल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, पुटम और अनदर बॉडी फ्लूइड्स. देन आता है केमिकल स्पिल. व्हाट इज मीन बाय केमिकल स्पिल? सो स्पिल जो है वो केमिकल का होता है. अगर कोई ड्रग्स हो या फिर कोई केमिकल सॉल्यूशंस हो, उसका अगर स्पिल हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल स्पिल. एनी केमिकल यूज इन द हॉस्पिटल, that may be liquid, solid or gas. Liquid, solid or gas, which is hazardous and injurious to the human body. Then mercury spill. Everyone is know about the mercury. It is present in the BP apparatus and thermometer. It is present in the BP apparatus and thermometer, that is mercury. Then radioactive spill. What is radioactive spill? Which provide the hazardous radiations to the human body. Example of radioactive spill is radiations, X-rays. Then procedure. What is the procedure of spill management? It is, we will discuss in detail in later video. So
there is a procedure. In that procedure we will discuss about the various types of spills, and then according to the types we will discuss about its management, how to manage the biological spill, chemical spill, mercury spill and radioactive spill. Then spill kit. What is spill kit? So there are in spill kit there are 5 main types, that is PPE. What is PPE? PPE is a personal protective equipment. Okay, means PPE, personal protective equipment, that is PPE. Then you should have absorbent material, whatever it is, it may be newspaper, means it should absorb the spill. Then waste collection bag, whatever spill you collect, that should be collected in the waste bag according to that spillage. Then scoop and scraper. Scoop, you should have scoop or scraper to collect the spill or any cardboard pieces. Then forceps to collect the glass or mercury or any other spill. To collect the spill you should have forceps. Forceps also very important. Then freshly prepared hypochlorite. After collecting the waste or spill into the waste bag, then you have to clean the surface area of that spillage by the help of 1% hypochlorite. It is disinfectant. So these are the kit, spill kit. These are the main material or main protective kit for the spill management. So you should early prepare the various types of material, whatever it is in spill kit. So to manage the spill management, spill in the hospital area, you have to prepare a spill kit first, that would contain the PPE, then absorbent material, then waste collection bag, scoop and scraper, forceps and freshly prepared 1% hypochlorite. It should be early prepared in spill kit. So यहाँ पे मैंने स्पिल मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू द स्टेप वाइज यहाँ पे डायग्रामेटिकली कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको मैंने डिज़ाइन किया है. सो फर्स्ट इज अ स्पिल. जहाँ पे भी स्पिल होगा वहाँ पे आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. कॉमनली इट इज़ यूज फॉर द बायोलॉजिकल स्पिल एंड chemical spill. Then mercury and radioactive spill we will discuss in the next video, which is very in detail and which is very fast topic to know. And mercury spill management is very important, mostly asked in the question in exam, mostly asked in the exam, mercury spillage. So we will discuss later about the mercury spill management. So this is the common management for the biological and chemical spill. So first when there is a spill, then you have to keep a signboard there so that everyone is know about the spill. क्योंकि अगर आपने वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगाया तो कोई भी पेशेंट के रिलेटिव्स और एनी हॉस्पिटल स्टाफ एंटर देयर. सो टू कीप द कंटामिनेशन एंड इंजुरी फ्रॉम द केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्पिल, यू हैव टू कीप अ साइन बोर्ड ओवर दैट एरिया वेयर स्पिलेज ऑकर्स. देन वेयर पीपीई किट. आपको कोई भी स्पिल मैनेजमेंट करना है, स्पिल को कलेक्ट करना है, वहाँ का एरिया क्लीन करना है, तो बिफोर दैट यू हैव टू वियर दी पीपीई. इससे आपका स्किन कंटामिनेशन नहीं होगा और आपको भी इंजुरी नहीं होगी. सो देन आता है कवर इट विथ एब्जॉर्बेंट पेपर और क्लॉथ. तो आपको जो भी बॉडी फ्लूइड्स और ये स्प्रेड दिखेगा वहाँ पे आपको पहले एब्जॉर्बेंट कोई भी क्लॉथ और पेपर डालना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिल जो है उससे आपका कवर हो जाएगा और वो स्प्रेड भी नहीं होगा. देन pour 1% हाइपोक्लोराइड ऑन द स्पिल. जो भी स्पिल है आपको उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए 1% हाइपोक्लोराइड और उस पर डालना पड़ेगा. और अगर मेजर स्पिल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्पिलेज हुआ है, तो आपको हाइपोक्लोराइड डालने के बाद 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है. एंड देन यू हैव टू कलेक्ट दैट रिमेनिंग स्पिल एंड कलेक्ट इन दी वेस्ट बैग. एंड अगर माइनर स्पिल है तो आपको 10 या 20 मिनट्स ही वेट करना पड़ता है. देन वाइप द एरिया इन सर्कुलर मैनर. जो भी एरिया है वो आपको डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से वाइप करना पड़ता है आफ्टर कलेक्शन दी स्पिल टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन. तो आप जो भी वहाँ पे एरिया क्लीन करेंगे, वाइप करेंगे, उनको बताना है कि इट शुड बी इन सर्कुलर मैनर, क्योंकि वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा अगर सर्कुलर मैनर से किया तो. देन पुट द कलेक्टेड मटेरियल इन येलो बैग.
हमको पता है कि कोई भी इन्फेक्टेड जो स्पील होता है वो येलो बैग में ही हम लोग कलेक्ट करते हैं। देन मॉप द एरिया विद डिसइंफेक्टेंट, मैंने पहले भी बताया है। तो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से ही आपको पूरा कलेक्शन होने के बाद एरिया क्लीन करना होता है ताकि इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो सके। देन सेंड द इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म टू द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। तो जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होते हैं उनके पास इसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में कौन सा स्पील हुआ, आपने किस तरह से उसको मैनेज किया। सो यू शुड सेंड द इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म टू द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। और एक हजमत करके शॉर्ट फॉर्म है ये, हजमत टीम। हज मीन्स हजारडस एंड एमेटिमैट मीन्स मटेरियल। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हजारडस मटेरियल, हजमत टीम। तो ये टीम को भी आप जब भी हॉस्पिटल में स्पिल होता है तो ये टीम भी उसको मैनेज करती है। अगर बहुत क्वांटिटी में केमिकल स्प्रेड हुआ है तो हजमत टीम वो पूरा कलेक्ट करके वो डिटेक्ट करते हैं किस टाइप का स्पिलेज है और बाद में आपको हेल्प करते हैं टू मैनेज दिस स्पिल। सो दिस इज हजमत टीम, हजारडस मटेरियल टीम। सो ये हो गया आपका कॉमन स्पिल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है मर्क्यूरी का स्पिल किस तरह से होता है और उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो वी विल डिस्कस इट इन लेटर नेक्स्ट वीडियो। सो दैट दिस इज द स्पिल मैनेजमेंट इन कॉमनली यूज। अगर आपको इस पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, आपके फ्रेंड्स को मेरी लिंक शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।